understand from you and hear from you that why salon, and what's keeping you motivated to be thriving and doing this. So we started Salon Apple in 1993. So that was started by Mrs. Naina Chopade, that is my mom, and she directed it further. So now then we expanded in terms of franchisees since 2015. By profession, I'm an actress. I act into South Indian films. I've almost done almost 16 plus films, including Tamil, Telugu and Kannada. Oh, wow. Still I am doing it. So what is the ideal time they should go to a salon and Start preparing for their wedding. So what we suggest is to have a test of everything if you have not done it. And if you have been a regular practitioner with any regular products, what we say is you can just continue doing that regularly so that if nothing new has to come in place. Correct. So that is what we recommend, and the ideal duration I believe is 3 to 4 months to start with before the wedding. Few mistakes which bride and groom, like separate, they make while selecting their makeup artist or while doing their makeup or what all things they should avoid. So these few mistakes which you can state. Mistakes as in they should be ready in their head, I think, कि उनको क्या चाहिए. That has to not change at the end of the day. मतलब वो एक mistake हो जाता है कि आज हमारा ये look decided है 8 दिन पहले, और 8 दिन में friends ने ये बोला ये नहीं चलेगा, ये है नया है, all of it, and then wedding day पे then you change everything with the makeup artist कि नहीं मुझे I think open head नहीं, I want tied head. All those changes should be avoided. These are the mistakes that brides and grooms do generally. जो होते हैं कि मतलब ये डिसाइडेड रहता है बट किसी ने कुछ बोला, इसी के वजह से वो चेंजेस होना, आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड. हम आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं. We have invited a lot of wedding experts and we'll make sure that we'll keep these videos short. चले, let's go. So Prachi, as you said कि अगर किसी को जिसका शादी है उसको एक अराउंड 4 महीने पहले से प्लान करना चाहिए. सो स्पा भी करें और थोड़ा कुछ मेकअप थेरेपीज भी ट्राई करें. बहुत बार ऐसा होता है कि देयर आर लॉट ऑफ NRIs और bride and groom who are working abroad and parents are here in India or the entire family is in abroad but they want to get married in India. और अभी तो मोदी जी भी बोल रहे हैं कि वेड इन इंडिया, ठीक है. So everybody should come to India and get married. So how but the problem is they have a little time with them because when they come to India, so they come to India just 15 days before or maybe 10 days before, So how do you tackle that? What do you suggest them? What should they do? मतलब if they have very short span assess. If there are 2 situations actually in it कि जिनको पता है that they want to come in India but they can have online sessions with particular makeup artist, particular skin therapist or hairdressers और जो भी है शादी के लिए जो भी important है उनके साथ. या otherwise I think if they don't have anything planned in their mind and they're coming to India, तो most effectively is they need to figure out the right they figure out what they want. मतलब उनके references अगर fixed है तो then they can preferably pick and choose their stylists. दूसरी चीज़ है उनको अगर if they have very short span of time and they have come here, they should look for they should not change anything. They should not change their what we say, the skin products. They should not go for something very new, as in if they came here and their wedding is just next week, तो उनको उनके बालों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना. Okay. Whatever they do has to be naturally done, और एक्सेसरीज करके आप करो. बट ऐसे खुद जाके कैरेटीन कराना, जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे NRIs हमारे यहाँ पे आते हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू फिगर आउट, मतलब उनको इधर आने के बाद somebody tells them that go for a keratin, I did it in my wedding. बट they उनके बालों पे होगा सूट नहीं होगा ये सब नहीं पता रहता. They have stayed in some other country with some other climate. इधर आते तो उनको ऐसा लगता है नहीं बहुत स्वेटिंग हो रहा है तो उसकी वजह से बाल खराब हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें ना उन्होंने सारी चीज़ें नया कुछ करने का अवॉइड करना चाहिए. दे हैव वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और उनको अपने स्किन पे भी, स्किन पे हो, हेयर पे हो, ड्रेसेस पे हो, कुछ भी नया ट्राई करने से दे शुड बी अवॉइडिंग एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू बी नेचुरल. दे शुड बी कीपिंग दैट इन माइंड.
सो कैन यू शेयर एनी इंसिडेंट, बिकॉज आपका तो इतना सारा एक्सपीरियंस है. बहुत सारे हैं that you know they came here and मुझे ये चाहिए वो चाहिए, you know I want to look it this way, I want to look that way, but उनका खुद का prep कुछ नहीं था. एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट? सो NRIs के साथ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, बट उनकी मॉम आई थी. सो मॉम ने द ब्राइड वाज समवेयर एल्स आउट ऑफ इंडिया एंड हर मॉम एंड डैड यूज्ड टू स्टे इन इंडिया. So she came to us and she was like, my daughter is getting married, so she wants to have these references. And we spoke to her daughter only on a call, because those days Zoom calls and were not very popular. And she told us everything on the phone, कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए and all of it. And her mom's expectations were completely different than her. और उसने बोलने के बाद मॉम का जो प्रेपरेशन था वो कम्प्लीटली अलग था. मॉम ने जो ब्रीफ दिया और ब्राइड ने जो ब्रीफ दिया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था. And what happens on the wedding day, it becomes a chaotic situation. मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे चाहिए, मुझे ये चाहिए. सो मॉम और डॉटर का जो सिंक था वो नहीं हुआ, इसीलिए ऑन द वेडिंग डे जहाँ पे 1-2 घंटा लगना चाहिए, माई आर्टिस्ट टुक like 3 hours to get that bride ready. Then that becomes a problem, because हर एक चीज़ टाइम पे होना वेडिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट. करेक्ट. तो वो चिल्लाना, वो थोड़ा हाइपर होना, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे वो सब मैनेज हो गया. But this is where the thing goes wrong. Sometimes and a little before the trial also. एक bride थी हमारी जो बाल स्ट्रेट करके आई थी और उसको एकदम cool look चाहिए था. Now we being artists, we know we can use products, but your hair has to handle those products also. And we were not ready with the extensions because उसने हमको information ही नहीं दिया. उसका reference pic अलग था एंड उसका एक्चुअल पिक अलग था आने के बाद, बिकॉज वहाँ से वो करके आई हो ये सब. और जो रेफरेंस पिक था इट वॉज ए नेचुरल है. और एंड देन शी वांटेड टॉन्ग्स ओनली, एंड हमने उसको बोला था दैट दिस विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज योर वेडिंग इज इन द मॉर्निंग, आपको ये आफ्टरनून तक रखना है, तो यू डोंट गो फॉर इट. तो नहीं ये सब मुझे नेचुरल हेयर पे ही चाहिए, मुझे ये कलर ही चाहिए. सो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. तो आपको आपके मेकअप आर्टिस्ट को, अगर आप बाहर से कई कंट्री से आ रहे हो एंड यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम, तो आप कुछ जो दिखा रहे हो रेफरेंसेस उनके साथ वही कांस्टेंट रखो, कुछ नया करके मत आओ और इधर आके कुछ नया ट्राई मत करो. तो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट आप वहाँ से लेके आते हो मेकअप या है कि वो आपकी इंडियन स्किन टोन को यहाँ के वेदर पे सूट होंगे या नहीं होगी, वो एक चैलेंज रहता है. क्योंकि अगर आप कोई अलग स्पेस यूज़ कर रहे हो, कोई अलग बेस यूज़ कर रहे हो, तो वो ये वेदर में टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो अगर आपको ट्रायल करना है तो ये सही टाइम नहीं है. करेक्ट. तो अगर हम ये बात कर रहे हैं, जब डेस्टिनेशन वेडिंग की भी बात चलती है, तो बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं. तो इंडिया का ही क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल आप पूना का क्लाइंट है या बैंगलोर का क्लाइंट है, या गोइंग टू राजस्थान एंड गेटिंग मैरिड, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि शुड दे ट्राई somebody from the destination to take care of the makeup, or should they get their own trusted or a long-term makeup artist who has done their previous work? Somebody who you know is a better person when you are at a destination wedding, because वहाँ के लोग आपका, you are not acquainted, you are not familiar with the makeup artist. और अगर आप नहीं हो वो सैलून और मेकअप आर्टिस्ट से familiar, तो बहुत सारे चीज़ें मैसअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि आपका कोई जो मेकअप आर्टिस्ट रेगुलर है उसको ही आप वहाँ पे डेस्टिनेशन पे, इफ़ यू प्रेफर, दैट्स द बेस्ट डिसीजन दैट यू वुड टेक. और ऐसे भी बहुत सारे स्टोरीज है जो हुए हैं हमारे साथ. Can you share one? हाँ. So basically people look for pricing when it comes to a destination, because when any artist also charge, I'm talking about the salon persona से, कि अगर बाहर जाना है तो we charge extra because वहाँ का travel allowance, everything increases. But at times we've seen people who generally do not want to do that expenses, और वो यहाँ से सारा कंसल्टेशन करके जाते हैं एंड दे आस्क. हमारे साथ ये हुआ था कि मतलब हमारी जो क्लाइंट थी वो सब प्री ब्राइडल यहाँ पे करके गई, एंड शी वांटेड टू टेक अ मेकअप आर्टिस्ट, बट समवेयर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड शी सेड दैट माय मतलब हर in-laws had booked somebody else. So she made that makeup artist talk to my person who was going to do her makeup otherwise, because she had to cancel it last minute. Makeup was cancelled. So वो जो conversation हुआ था ना, वो इतना मतलब इतना what we say messed up था कि कुछ भी उसमें हुआ नहीं, because her ego was hurt. My makeup artist was still ready because her ego was also hurt because उसका cancel हुआ है, उसका भी ego hurt था, and
they couldn't actually transfer proper information. और इस सब में the client suffers. So what I feel is, if you have something, instead of looking, of course everybody should look at the budgets, but budget से better है आप आपके artist को लेके जाना is what I prefer. क्योंकि उस दिन पे आपके पास टाइम कम रहता है, उस दिन पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत रहते हैं. सो इट इज़ बेटर टू जस्ट you're emotionally also drained out. Correct. You're emotionally also in some other zone. Correct. So it's better to have somebody के जहाँ पे हमारा पैनिक ना चीज़ें होने का ज़्यादा चांसेस हैं, वो ना चीज़ें करे. So somebody who take it along is better. जिसको आप जानते हो हर टाइम्स. Okay. And also, okay, since we are talking about little stories and incidences, so, as you are a second generation in this business, okay? And off the camera, we were just talking how you both used to, assist your mother when she used to, she herself was a makeup artist. And so, can you just tell a few stories, both of you, if, any of the story which reminds you, which is like still, कि हाँ यार ये अभी भी याद है. बहुत मेरी तो बहुत मेमोरीज है, बिकॉज मैं तो बहुत छोटी थी. आई वॉज वेरी यंग, एंड वेन वी यूज टू बैक देन लाइक अराउंड 18-20 years ago, not even now, those days wedding used to be not a separate room for a bride and a groom. Everything used to be together, all the family members together. And then जब mom used to start doing the makeup, or we used to just keep folding the palettes. वो हमारा था. And बहुत सारे relatives थे, नानी, चाची, बुआ, everybody used to be around. और ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया. They used to interrupt. That was very problematic. So I remember my mom. Mom used to not lose her patience because वो bride के relatives है, तो उसको hurt करना भी difficult है. तो mom used to say that आप अगर tip देना चाहते हो ना, तो ये सारा चीज़ होने के बाद. So my mom is a very open person. She immediately react. वैसे otherwise, but in terms of a bride, she was very patient all through, रहती थी. And then at the end of the day, she used to burst that, हाँ ठीक है, फिर आप एक बार ट्राई करो. इससे मेरा हुआ था कि ये आईलाइनर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. रिलेटिव की कोई थी, तो ये चीज़ों में ना मॉम लॉस्ट इट. एंड मॉम वाज लाइक, ओके फाइन, आप एक बार दिखाऊंगा, आप कर लो, मैं दूसरा साइड कर ले रही. एंड आई वाज लुकिंग एट हर. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, या टाइम पे ना आना, ऐसे बहुत इंसिडेंसेस है. तो मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, ये फील था. बट आई यूज्ड टू गो विथ मॉम. अर्ली मॉर्निंग मेकअप्स में जनरली मिल जाते थे, क्योंकि अदरवाइज मम्मी के साथ असिस्टेंट रहने थे. तभी 5 बजे हाँ वी यूज्ड टू गो फॉर मेकअप, और फिर वहाँ पे कुछ भी रेडी नहीं रहता था. ब्राइड यूज्ड टू कम एट 6 o'clock आपके आराम से. फिर सब हम लोग तब तक पेशेंस मेड की वेट कर रहे उनका. और ऐसे टाइप पे ना मतलब जब भी मॉम मेकअप करते रहते थे, तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज में बहुत देती थी लोगों को. जैसे या फिर के पिन लगा रहा मेरा गैस कर दिया. तो अभी वो लास्ट में बोलने लगी थी, मुझे इसका चार्ज चाहिए. का नहीं, मैंने 10 लोग उठा करके पर दादी का फिर लगा दो. हाँ, और मतलब बहुत सारे सर्विसेज एक्स्ट्रा. इतने में क्या होता है. और मुझे ना ये चीज़ बहुत खटकती थी पहले, दैट पार्लर वाली का वो कॉन्सेप्ट था, वो बहुत था. अभी वो नहीं. व्हाट आई सी, मेकअप आर्टिस्ट को डिमांड रहती. मुझे एक रूम चाहिए, AC रूम चाहिए, मुझे लाइट सनलाइट चाहिए, मुझे बेड चाहिए, मुझे 2 चेयर चाहिए. पहले हमारे टाइम पे जब when mom used to do, it was completely different. Yes. ढूंढ के लाना पड़ता था. मुझे याद है, मैं खुद जाके वो इवेंट कंपनी से बात करके उनसे चेयर लेके आना, 4-5 चेयर हमारे प्रोडक्ट्स के लिए लगाना, मिरर लगाना, ये सब हम लोग जाके करते थे. अभी ये बहुत डिमांडिंग हो. और जितना पंडित जी इम्पोर्टेंट है, उतना ही इन लोगों का सामग्री इम्पोर्टेंट. Correct. तो वो मुझे बहुत डिफरेंस है. आप जैसे पहले यू वर आस्किंग मी व्हाट इज द ट्रांजिशन. दिस इज द ट्रांजिशन दैट आई सी, दैट नाउ वी कैन डिमांड. बैक देन वी वर नॉट एबल टू डिमांड एनीथिंग. जो है जैसे चल रहा है आप करो और निकलो टाइप्स. बट वो रिस्पेक्ट, द रिस्पेक्ट फॉर अ सैलून और अ मेकअप आर्टिस्ट और एनी आर्टिस्ट has gone to a next level. Correct. And that parlor wali concept has changed to a now an artist concept. Correct. अभी तो काफ़ी मेकअप में वेरिएशन आ गया, 3D मेकअप और एयर ब्रश मेकअप. पहले तो जब भी मेरी मॉम यूज्ड टू डू मेकअप, तभी वो भी मेकअप पूरा दिन कैरी कर सकती थी. वो बड़ा इतना वो मेकअप का क्वालिटी अच्छा होता था. जब भी माय मॉम यूज्ड टू डू क्रायोलॉट्स भी वो सारे. यस. तो मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे स्टोरीज है बचपन के जो हमने देखे हैं.
यू नो वी हैव सीन 15-20 ईयर्स पहले के ब्राइड और ग्रूम और उनके फैमिलीज और अभी के ब्राइड एंड ग्रूम और उनके फैमिलीज. अभी भी होती है चीज़ें ऑफ कोर्स इन व्हेन स्पेस कंस्ट्रेंट्स होते हैं. Correct. बट बैक देन इट वाज वेरी टेरेबल विद फैमिलीज एंड द ब्राइड एंड द ग्रूम. मतलब ग्रूम के लिए तो मेकअप होता ही नहीं था, बस वो आ जाता था 2 मिनट एट द एंड ऑफ द डे 5 मिनट्स उसको टचअप मिलता था. और ऐसे बहुत सारी ग्रूम मम्मी ने देखे कि अरे ये ग्रूम के लिए तो मेरे पास पैलेट ही नहीं है. सो हाउ लाइक यू नो देन मिक्सिंग करो, उसको लगाओ, फिर फैमिली बोलेगा नहीं नहीं तुम मत ले, फिर वो धोना वापस से. इवन ब्राइड्स के साथ ऐसे होता था, पहले ट्रायल्स नहीं होते थे तो ब्राइड को ऐसे बहुत लगाना मेकअप, देन शी यूज्ड टू गो एंड वॉश. मतलब वो क्योटिक सीन्स जो थे ना, Correct. वो अभी बहुत सारा ऑर्गेनाइज्ड वे में चला. Correct. So, अच्छा, one more thing which I want to ask you कि ओपन आउटडोर वेडिंग और इंडोर वेडिंग इससे कुछ फर्क पड़ता है मेकअप की? बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज सनलाइट द लाइट इज डिफरेंट इन इंडोर्स एंड आउटडोर्स. 1 2 वेदर, बाहर यू नो इट्स ओपन एयर, क्लाइमेटिक कंडीशन से एडजस्ट होना पड़ता है. और इंडोर्स तो आपके पास एसी है, फैन है, एवरीथिंग यू हैव, सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट. सो अगर आपका वेडिंग कोई भी सेशन, अगर आपका संगीत आउटडोर्स है बट वेडिंग इंडोर्स है, तो दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू कम वेरी प्रायर टू अस बिकॉज मेकअप और हेयर दोनों वेरी करते हैं. अगर आप कोई बीच साइड वेडिंग कर रहे हो और आपके बालों पे उसका पहला इफेक्ट होगा बिकॉज इट्स ह्यूमिड देयर, सो इट हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड. आई थिंक आउटडोर्स एंड इंडोर्स इज वेरी डिफरेंट. द प्रोडक्ट्स दैट गोज फॉर दीज टू यू नो कैटेगरी ऑफ हेयर एंड मेकअप इज ऑल्सो डिफरेंट. और लोगों के स्किन टाइप के हिसाब से भी वो चीज़ें बदलती चेंज हो जाता. तो फिर ये चेंजेस विंटर वेडिंग और समर वेडिंग में भी होते होंगे? बहुत होते हैं. येस, बहुत होते हैं बिकॉज विंटर्स में आपका स्किन ड्राई पड़ जाता है, समर्स में आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाता है. सो उस हिसाब से मेकअप प्रोडक्ट्स भी बदलते हैं. सो नॉट नेसेसरी कि अगर आप विंटर में आए और आपका वेडिंग समर में है तो आपका स्किन अभी जैसा दिख रहा है मुझे वैसा ही दिखे समर्स में. इट विल यू नो इट कैन चेंज 360 डिग्रीज ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट के लिए ऑफकोर्स प्रिकॉशन लेना पड़ता है. और हर एक मेकअप आर्टिस्ट अभी दे आर वेल वर्स्ड विद दिस कि अगर सीजन टाइम पे कैसा होता है मेकअप, अकॉर्डिंगली वेदर के हिसाब से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए. उसके हिसाब से हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम जो कोर्सेज रहते हैं तो उसके हिसाब से एच डी मेकअप, लाइक ऐसे एयर ब्रश मेकअप, अगर आउटडोर वेडिंग है तो भी रिकमेंड एच डी मेकअप और एयर ब्रश मेकअप. सो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लॉन्ग स्टे रहता है इसका. सर्टन मेकअप्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी कंडीशंस. तो जो वो वाले जो मेकअप है जैसे एयर ब्रश हो गया, एच डी हो गया, बहुत लोगों को ना, बहुत ब्राइड्स को ये डिफरेंस ही नहीं पता रहता है. एंड मनी मेकिंग बिजनेस भी है, तो आई वुड नॉट यू नो इवन इफ इन दिस इंडस्ट्री आई नो दैट यू नो एयर ब्रश इज चार्ज लिटिल हायर देन एच डी मेकअप, हाई डेफिनेशन मेकअप आई वुड से. सो सारी जगह आपको एयर ब्रश करने की ज़रूरत नहीं रहता है. अगर फॉर योर वेडिंग यू कैन गो फॉर अ एयर ब्रश मेकअप, बट इफ इट इज़ अ संगीत यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ हाई डेफिनेशन मेकअप जो बहुत हो जाता है. You know, or that is the difference. I mean, people are not understanding nowadays. Correct. And are getting fooled out of. So I think ये differences है that airbrush makeup should be done for anything which is particularly, you know, going to be for a longer duration. जैसे आपको होम हवन के सामने बैठना है, then you need that hairbrush makeup so that आपको sweating होगा, फिर भी वो skin पे ना दिखे. Correct. So all these things are very important. Okay. And one more thing which I see trend since destination weddings are becoming a trend. So even the spa, you know, the pop-up spa culture is, you know, coming up, like where they put up stalls and just do some massages. So like, what is your take on this? Do you guys suggest these kind of services? Yes, we do it with Aishal events. And so basically what happens is it's like an extra add-on to the guests. It also creates an excitement for the guests. And moreover, I think it's important कि उनको relaxation में मिलता है. You know, there are nowadays spa pop-ups है, you know, other counter pop-ups है, you know, fun games होते हैं. All this has become very trendy in destination wedding, or I think in the regular in-city, in-town weddings also. With spas or with salon or spa, what we suggest is a relaxing, you know, leg massage, शोल्डर मसाज, हेड मसाज, नेल आर्ट हो गया, एक्सटेंशंस हो गया बालों पे, टेम्पररी एक्सटेंशंस हो गया. सो दिस इज व्हाट वी सजेस्ट एंड वी डू इट एट वेडिंग्स. उससे द यू नो माहौल भी बना रहता है, गेस्ट भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं एंड शादी मेमोरी बन जाती है. Like destination wedding, we also provide destination spa services.
Kasturi destinations. Great. Okay, so we have kind of come to our almost at the end of our session. So in end of our session, we normally ask some tips and suggestions for our bride and groom. So I would like to ask you, if you can tell me few mistakes which bride and groom, like separate, they make while selecting their makeup artist or while doing their makeup or what all things they should avoid. So these few mistakes which you can state. Mistakes as in they should be ready in their head, I think, कि उनको क्या चाहिए. That has to not change at the end of the day. मतलब वो एक मिस्टेक हो जाता है कि आज हमारा ये लुक डिसाइडेड है 8 दिन पहले और 8 दिन में फ्रेंड्स ने ये बोला ये नहीं चलेगा, ये है नया है, ऑल ऑफ इट, एंड देन वेडिंग डे पे देन यू चेंज एवरीथिंग विद द मेकअप आर्टिस्ट कि नहीं मुझे आई थिंक ओपन हेड नहीं, आई वांट टाइड हेड. All these changes should be avoided. These are the mistakes that brides and grooms do generally. जो होते हैं कि मतलब ये डिसाइडेड रहता है बट किसी ने कुछ बोला इसी के वजह से वो चेंजेस होना, आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड. एंड आई थिंक ब्राइड एंड ग्रूम को दे हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द मेकअप आर्टिस्ट व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट देयर स्किन, देयर टाइप और टाइप ऑफ द फंक्शन दैट दे आर गोइंग टू गेट. बिकॉज पैसा बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोग बोल देते कि नहीं मुझे सिर्फ देखने है. हमारे साथ ऐसे हुआ है. मैंने जैसे आपको पॉडकास्ट से पहले आप लोग डिस्कस कर रहे थे बोला था कि दे कम एंड दे से दैट नहीं मुझे आज देखने आने वाले. एंड हम जब जाते हैं तब सब डेकोर हुआ है और ये सब एंगेजमेंट का डेकोर है एंड शी इज गोइंग टू गेट रेडी फॉर अर एंगेजमेंट. So that is very shocking for a makeup artist, and then we will not deliver 100% because that's like that then comes on the profession itself. Correct. That is not right. I think लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए. दे शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद द मेकअप आर्टिस्ट और एनी आर्टिस्ट और एनी स्किन थेरेपिस्ट, ब्यूटिशियंस जो भी है उनके जो करने वाले हैं उनके साथ ये सारा ऑनेस्टली बताना कि मेरी स्किन पे ये चीज़ें हो चुकी है, मेरी ये स्किन पे नहीं चलने वाली, या मेरा ये इवेंट है, ये इवेंट के लिए मुझे ऐसे ड्रेसअप होना है. सो एवरीथिंग आई थिंक ऑनेस्ट जो होता है बहुत. एंड ऑब्वियसली द आइटनरी, outdoor, indoor, all these things told to the makeup artist prior so that they also get prepped, and last minute we can have that perfection. नहीं तो मैंने मतलब ये स्टोरी मैंने जो आपको बोला, it was with me only. I went with my makeup artist back then when I used to handle salons all alone. और हम लोग गए थे और उसने हमें बोला था कि मला आज बघायला येणार आहे, मेरा आज मतलब टीका है. टीका और एंगेजमेंट में फर्क होता है. सो टीका तो हमने बोला ठीक है, एंड देन ही चार्ज अस वेरी लाइक अ वेरी नॉमिनल अमाउंट फॉर हर थिंग, एंड फॉर एंगेजमेंट्स वी हैड एन अमाउंट विच वाज ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स हायर बिकॉज ऑफ कोर्स हमको वो प्रेपरेशंस करने पड़ते हैं, उस टाइप का मेकअप हमको करना पड़ता है सो दैट शी स्टैंड्स आउट ऑन होल डे. सो बट वो हुआ नहीं. वहाँ पे जाके देन आई सेड वी वोंट डू योर मेकअप. हमने बोला हम नहीं करेंगे मेकअप. देन शी वॉज पिस्ड. अब ऐसे कैसे, आपको तो पता है. हमने बोला हमको यहाँ पे आके जब पता चलता है कि आपका इतना बड़ा फंक्शन है, इट्स नॉट अ टीका, इट्स नॉट अ हाउस होल्ड सेरेमनी, इट्स लाइक एन ओपन एंड सेरेमनी, एंगेजमेंट है आपका, तो दिस इज रॉन्ग. सो देन वी मेड हर पे एंड बट हमने उसको डिलीवर भी अच्छे से कराया. एट द एंड ऑफ द डे उसने खुद ने भी बाद में उसके वेडिंग हमसे ही बुक किए थे, मेकअप्स एंड एवरीथिंग. बट देन आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप फिर ट्रस्ट नहीं करते. So ये चीज़ important. In this industry, for steel and for theatre, we do a different makeup. Like स्क्रीन के लिए करते तभी कम मेकअप रहता है, जब हम थिएटर करते तभी ज़्यादा मेकअप रहता है, क्योंकि वो लास्ट जो आदमी बैठा है उसको भी दिखना चाहिए हमारी एक्सप्रेशन. तो वैसे काफ़ी वेरिएशन ये इसमें भी है कि अगर टीका में करना है तो आपको सामने से लोग देखने वाले, आप स्टेज पे नहीं रहोगे स्पेसिफिकली, तो वो कम मेकअप चाहिए. अगर आप स्टेज पे रहोगी तो फोटोज़ और लाइट्स के लिए अलग मेकअप चाहिए. अगर आप शादी के लिए हो तो वो थोड़ा ब्राइट चाहिए. तो ये काफ़ी वेरिएशंस इन लोगों को अब तक समझ में नहीं आए. पर मेकअप का तो ये पार्ट हो गया. मेकअप हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी वेडिंग थिंग. बट आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि हायर अ वेडिंग प्लानर सो दैट आपको ये टेंशन नहीं रहे कि आपको क्या करना है, क्या अरेंज नहीं हुआ है कुछ. मैंने जो आपके साथ इवेंट किया था, जो भी हमारा रिसेंट इवेंट था, तो आई वॉज वेरी स्ट्रेस पे क्योंकि आप थे वहाँ पे और ताशी काफ़ी चीज़ें संभाल रही थी. तो आई थिंक उस दिन अगर आपको स्ट्रेस की रहना है तो हायर अ वेडिंग प्लानर. आई शुड लिव विथ आई शुड लिव विथ इशू सेट ये करिए आप. एनी वेडिंग प्लानर आई वुड से, बट चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट. So that we can sit back and realize actually yes. Yeah. Okay. So now I also want to ask you to give our viewers, like people who are going to get married,
in next 3-4 months. So if you can just give them some tips for bride, maybe one or two tips, and for groom, different tips what they should, especially related to makeup as well as spa. Okay. So tips में I feel I would suggest something which is very collective, of course. Makeup में अगर आपका wedding है अभी 3-4 months down the line, I think you should first go and look for a skin therapist, an aesthetician, where you should plan your pre-bridal treatments or pre-groom treatments with them. जैसे मैंने बोला, everybody nowadays have these 4, 3, 1 month, 2 month, 3 month regimes. वो आप पहले सेट कर लो. वो मेरा बहुत बड़ा टिप रहेगा, बिकॉज फर्स्ट सेशन में आपको पता चल जाएगा आपके स्किन पे और हेयर पे क्या सूट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. सेकेंडली, स्टार्ट अ होम केयर रेजिम. अगर आप नहीं कर रहे हो तो देर आर लॉट ऑफ गर्ल्स दे डू इट, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ बॉयज दे डोंट फॉलो स्किन केयर रेजिम. मतलब किसी ने बोला ये फेस वॉश अच्छा है तो दे जस्ट यूज अ फेस वॉश. They don't use that CTM regime. तो किसी का भी skin or boy or a girl, it doesn't matter. A CTM regime is what I suggest. A cleansing, toning, moisturizing sessions जो रहते हैं आपके skin type के accordingly, आप अच्छे से जाके consultation करके वो आप शुरू करो, because that is going to be a longer run benefit for your skin. And secondly, start prepping up for if you are अब बहुत सारा stress है around हो रहा है और होता ही है weddings में, तो book your spa sessions also accordingly. Monthly एक spa session या एक foot massage session will also help your body to release that tension and release that stress, ताकि वो skin पे ना आए. Because stress से सिर्फ face पे नहीं होता है, it also turns out into pimples, acne और हेयर फॉल, ये सब चीज़ें हो जाती है. तो इट इज़ बेटर दैट आई वुड सजेस्ट अ सटलाइजर. मैंने जैसे पहले बोला था, डोंट गो फॉर समथिंग विच इज़ वेरी हार्श ऑन योर बॉडी. समथिंग विच इज़ वेरी सटल लाइक अ स्वीडिश मसाज वुड हेल्प यू. एंड बाकी चीज़ों में आई थिंक स्टार्ट यूजिंग अ रेगुलरली यूज समथिंग विच इज़ लाइक अ लूफा एंड यूज सम स्किन केयर बॉडी केयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो अकॉर्डिंगली, कि पहले आप एक्सपोलिएट कर रहे हो उसको और फिर मॉइस्चराइज कर रहे हो. So that will help on the day of the wedding to कुछ भी skin पे problems नहीं होने के लिए. Okay. Good. Thank you, Prachi. One last question. Since you have a huge experience and you are second generation in this, so for my viewers, I just want to know that how do one select a good or a perfect or a right makeup artist for their D-Day? Because that is very important, because if you don't hire a right person, no matter what all things you do, you still miss out on things. So somebody is sitting in, let's say, some other city where they do not have access to people like you who have got good experience. What are the important things they should tick mark? Okay, these are things are there, then he's the right person or she's the right person. So collectively भी I see when people look for a makeup artist or any artist for that matter, I think you need to see their profile once, be it on a digital profile, be it a proper profile sent from the makeup artist. You need to see that and उसको cross verify भी करो. Ask any makeup artist for a client reference जिनका उन्होंने किया है, and then talk to the client. That is what we also suggest to our clients if they have this thing in their mind. So whenever you're selecting a makeup artist, first is look at their experience. Please do not select anybody which is very new to this, because makeup is not something which has to go right on your skin. Secondly, look for the references जो आपके choices में है या नहीं. If you want something which is very subtle and the makeup artist is very expert in other, in the bold looks, then do not, I think avoid such makeup artists. आपके जो रेफरेंस है और उनके जो रेफरेंस है, आपका है जो रेफरेंस इन योर माइंड एंड द मेकअप आर्टिस्ट ने जो काम किया उनका रेफरेंस अगर मैच हो रहा है 80% भी, देन आई थिंक यू शुड ऑफर दैट मेकअप आर्टिस्ट. सेकेंड इज, आजकल मेकअप आर्टिस्ट के सारे प्रोफाइल्स रेडी रहते हैं. सो गो एंड लुक फॉर देयर प्रोफाइल्स, see the comments, talk to the client, 1 or 2 odd clients, and अगर आपके पास टाइम है तो make sure that you get your try and test done. That's very important. Just like that, just by talks or just verbal communication से आप don't go for the wedding day. I think first initial trial test is a mandate और सभी देते हैं. It's nobody can avoid it. They charge you extra, but I feel that's worth it. आप उनसे ये सब बातें करके ट्रायल टेस्ट करके then I think book any makeup artist. Great.
Thank you very much. Thank you, Dimple, for coming. Thank you, Prachi. It was lovely having two sisters. Thank you very much for watching this episode. I hope you enjoyed it. Please don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये content किसी के लिए important है, please share with them. And in case if you want us to cover a specific topic or content, please comment below. Thank you.